کے سپرد کیا اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے حصے کا جو مال ہے یہ آپ کو دیا ہے۔ غور کرنا، وہ صحابی رسول اپنے حصے کا مال اٹھا کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، ما اتبعت لمال هذه الدنیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں نے آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے دین پر اس لیے عمل نہیں کیا ہے کہ مجھے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی عیاشیاں اور دنیا کا مال ملے، ولیکن اتبعت، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے دین کو اس لیے مانا ہے، میں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے تاکہ دنیا کے اندر میں قرآن و حدیث پر عمل کر کے روز قیامت ہو اور میرا داخلہ جنت میں ہو جائے۔ اس لیے میں نے آپ کو مانا ہے، میں قرآن کو اس لیے مانتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں حدیث کو اس لیے مانتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی اور مال و دولت کو کما کر میں آخرت میں خوار اور ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ لیجئے اپنا مال، میری خواہش ہے، میرا دل ہے، میری نیت ہے، اے اللہ کے پیغمبر یہی جنگ ہو، آپ شریک ہیں، دشمن کا تیر آئے اور میری گردن میں لگے۔ گردن پہ انگلی رکھ کے اشارہ کیا، غور کرنا، گردن پہ انگلی کا اشارہ کیا، اللہ کے پیغمبر آپ کی اتباع کی ہے، جہاد میں شریک ہوا ہوں، میری گردن میں دشمن کا تیر لگے اور میں اپنے رب کو پیارا ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اگر یہ میرا صحابی صحیح کہہ رہا ہے، اس کی نیت صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی لاج رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق دے گا۔ مختصر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، پھر جب لڑائی ختم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ، میرے اس دیہاتی صحابی کو لے کے آؤ، دیکھ کے آؤ کہاں ہے وہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی شہید ہو چکا ہے، اس صحابی کی لاش کو اٹھا کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اس صحابی نے اپنی انگلی رکھی تھی، اپنی گردن پر انگلی رکھی تھی، اسی جگہ پر دشمن کا تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ کتاب جائے کتاب جائے ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس جگہ پر اس صحابی نے انگلی رکھی تھی، اسی جگہ پر دشمن کا تیر لگا اور وہ صحابی شہید ہو گئے۔
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे इस सहाबी का सामान ले आओ। देखते हैं कि कफन के हवाले से क्या चीज इसके पास मौजूद है, इसको कफन दें, इसको दफन करें। जब सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उस सहाबी का साजो सामान लेकर आते हैं, कुर्बान जाइए, जो सहाबी रसूल की नीयत थी, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि हमने उसके सामान को देखा, उसके पूरे साजो सामान के अंदर सिर्फ एक चादर थी, और चादर की कैफियत यह थी कि उसको कफन देते हुए अगर वो चादर सर पे डालते हैं तो पांव नंगे हो जाते हैं, अगर वो चादर पांव पे डालते हैं तो सर नंगा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबी की कफन के हवाले से इस कैफियत को देखते हैं, क्योंकि उनका जो मिशन और टारगेट था वो जन्नत था, दुनिया के हसूल नहीं था। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ये मेरा जुब्बा मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक उतारा और फरमाया ये मेरा जुब्बा, और इस जुब्बे के अंदर मेरे सहाबी को कफन दीजिए। मेरे भाइयों, हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, हमारी गर्ज दुनिया नहीं होनी चाहिए। हमारा हदफ, हमारा टारगेट कुरान और हदीस पे अमल करके, सुन्नत पे अमल करके, फराइज को पूरा करते हुए हमारा टारगेट होना चाहिए रोज़े क़यामत हो, जब हम रब के सामने पेश हों, अल्लाह ताला हमें सुखरू करके जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम आए हुए हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बहरहाल अपने आप को नसीहत करते हुए और आप भाइयों के सामने अल्लाह के पैगंबर का एक और फरमान रखता हूं। मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं रबिया इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन सोचते हैं कि हम सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन को अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं। हर वक्त कोई ना कोई सहाबी मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए। क्यों ना अगर रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हाजत पेश आ जाए, कोई हाजत आ जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कौन करेगा? इस जज्बे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी का एक बर्तन, एक लोटा मिस्कीजा लेकर रात को इशा की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे की चौखट पर बैठ जाते हैं कि कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हाजत हुई तो मैं आपकी खिदमत करूंगा। दिन गुजरते रहे। एक दिन अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं। रात को तहज्जुद की नमाज के लिए अपने रब को राजी करने के लिए क़ियामुल लैल, क़ियाम, रुकू, सुजूद, रब की खुशनुदी, रब की रजामंदी। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलतियों से पाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों के सरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे कायनात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के लाडले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के प्यारे। ये वो पैगंबर हैं जिनकी इतनी अजमत है, लेकिन वही पैगंबर रब रात को उठता है रब को राजी करने के लिए। तहज्जुद के लिए मेरे पैगंबर उठे हुए हैं। वुजू करने के लिए घर में पानी मौजूद नहीं है,
दरवाजा खोलते हैं, देखा सामने दरवाजे पर रबिया बैठा हुआ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब अल्लाह के पैगंबर ने अपने सहाबी को देखा, पूछा रबिया कैसे? जवाब दिया, अल्लाह के पैगंबर मैंने ठान लिया था, मैंने सोच लिया था कि हम दिन को तो आपकी खिदमत करते हैं, अगर रात को आपकी हाजत आ जाए कौन खिदमत करेगा? आपकी खिदमत की नीयत से मैं उसी वक्त से हर रोज इशा की नमाज के बाद हर रात को आता हूं और सुबह की नमाज के टाइम चला जाता हूं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत लायक होती है, पानी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रबिया बिन काब ने आपका वुजू करवाने के लिए पानी डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं और फरमाया रबिया सल तोता, आज मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ मांगेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से दुआ करूंगा, आपको वो कुछ मिल जाएगा, आप जिस चीज का भी मुतालबा रखेंगे। मेरे भाइयों, यहां पर मैं अपने ज़मीर को और आपके ज़मीर को झिझोड़ना चाहता हूं। किसकी जुबानी, किसके अल्फाज हैं, किसकी जमानत है? जो कुछ मांगोगे मैं अल्लाह से कहूंगा, दुआ करूंगा, अल्लाह वही अता करेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबानी है। आइए रबिया बिन काब की सोच को देखते हैं, उनकी क्या सोच है, उनका क्या दिल है, वो क्या लेना चाहते हैं? क्या हमारी तरह दुनिया के मुतलाशी, क्या हमारी तरह दुनियादार कि मुझे दुनिया की इज्जतें चाहिए, मुझे दुनिया का वकार चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत चाहिए? नहीं, रबिया बिन काब ने क्या फरमाया? बड़ी तवील हदीस है। रबिया बिन काब के दिल में सोच आई, आज मौका है, अल्लाह के पैगंबर ने खुद पूछा है, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। और इसके अंदर बड़ी एक ऐसी चीज है कि जो चीज मांगूंगा मिल सकती है। रबिया के दिल में सोच आई, ख्याल आया कि अल्लाह के पैगंबर क्या मांगो, जन्नत में सारे जाएंगे, जहन्नम से दूरी भी मांग सकता हूँ, दुनिया की अगर कोई चीज मांगना चाहता हूँ वो भी मांग सकता हूँ, लेकिन सोच ये है, इतना आला सोच, जन्नत मांगता हूँ वो भी मिलेगी, उस जन्नत में बहुत सारे लोग जाएंगे। लेकिन रबिया ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर जन्नत भी चाहिए लेकिन मुराफक़तक फिल जन्ना, जन्नत भी हो और जन्नत में आपका पड़ोसी होना भी, ये भी चाहता हूं कि आपके साथ हो, जन्नत भी हो और जन्नत में आपका पड़ोस भी हो। ये सोच और ये नियत थी। दुनिया में मांग सकते थे। मेरे भाइयों, मेरे महबूब, मेरे कैद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, इन्हीं बातों पर मैं इक्तफ़ा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे